Topic called as aromatic amines, which is as such included in the PCI syllabus. So that we talk about aromatic amines, we just discussed or we said that this is the structure of aromatic carboxylic acid. Okay? Agar if I say this structure with two carboxylic acid groups, it is called as allylic acid. A structure containing a carboxylic acid and a methyl group at para position, we will call it as, we can call it as para-methyl benzoic acid or para-tolic acid. Both of them are correct. ठीक है? अब तुमसे एक्चुअल में क्या एक्सपेक्टेशन है, that what about aromatic acids you should understand. ठीक है? You should understand कि there are two things that we need to talk about. मतलब जो सिलेबस है वो क्या मांग रहा है तुमसे मांग रहा वो एक्सप्लेनेशन के एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये एक पॉइंट जो सिलेबस इज आस्किंग, राइट. फिर उससे भी इम्पोर्टेंट जो कंटेंट मेरे को कहीं पे भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं मिला, विच आई एम ट्राइंग टू पुट इट फॉर ऑल ऑफ यू, इज the effect of substituents on acidity, right? और वो मांगता, this is what is the requirement of the syllabus. और वो एक और चीज मांगता, all the reactions of aromatic carboxylic acid. ये easy है, ये सब तुमको आता है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ये easy वाले के बारे में. अभी बात करते हैं ये, what do you mean by acidity of कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, हमारी कहानी हमेशा शुरू होती है व्हाट इज एन एसिड. बोलिए, व्हाट इज एन एसिड? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स अ प्रोटॉन, राइट. एनी सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स अ प्रोटॉन इज एन एसिड. इसलिए हमने RCOOH को एसिड बुलाया था, हमने डब्बा OH को भी एसिड बुलाया. ये कौन था? फिनॉल, बराबर. हमने अल्कोहल को भी एसिड बुलाया था. We saw those reactions of alcohol wherein alcohol is donating a proton. Out of all these, who is the strongest acid? Then पढ़ा है हमने, सब पढ़ा है, कंपेयर किया है हमने फिनॉल्स को अल्कोहल के साथ, हमने कंपेयर किया है कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनॉल्स के साथ. Similarly, now we would want to talk about the acidity of aromatic carboxylic acid. यहाँ ऐसा लिखने से मैंने पहले ही जतला दिया तुमको that aromatic carboxylic acid is a stronger acid as compared to aliphatic carboxylic acid. As compared to the aliphatic carboxylic acid. क्यों भाई? तो मुद्दा देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने तुमको याद होगा अल्कोहल को फिनॉल से जब मैंने कंपेयर किया था तो मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? दैट एरोमेटिक अल्कोहल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. मतलब द फिनॉक्साइड आयन, बराबर, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन is stabilized by resonance, whereas alkoxide is not. Correct? Similarly, if I say C double bond O negative, हम जानते हैं ये भी stabilization resonance से होता है. हम बताते हैं कि this is shown by a structure like this. Negative charge is continuously disposing here, ऐसा 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 चलते रहते. उतना ही. Whereas if I say that it is aromatic ring is attached to this COO, then this negative charge will not only resonate here, but it will resonate in this part of the ring also. Hence, who will be a stronger acid? Aromatic carboxylic acid. Simple. क्या बोला हमने अब तक सिर्फ दो बातें पढ़ी. Acidity of carboxylic acid के बारे में we talked about two things. See, understand.
कि who is an acid, what is the definition of acid. दूसरी बात हमने बोली कि yes, aromatic carboxylic acid is a acid because it will donate its pair of electron and it will become this ion. Third बात हमने बोली that this is more stable as compared to the carboxylate ion because the negative charge will be dispersed here and here, all of them. जितना delocalization ज्यादा उतनी stability ज्यादा. हो गया first comparison. We have compared, हम कोई resonating forms नहीं बना रहे हैं. We are just comparing aromatic carboxylic acid to aliphatic carboxylic acid. यहाँ तक कि मेरी बात clear सबको? Yes. Now we move on to our discussion about the fourth point in acidity, which is called as effect of substituent. ये तो अगर मैं तुमको नहीं भी बताती तो तुम खुद ही प्रेडिक्ट कर लेते. जैसे फिनॉक्साइड इज मोर एसिडिक, वैसे ही एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है आगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. ये थोड़ी सी बात अलग से. इसमें भी कुछ जानकारी तुम्हारे पास पहले से है. देखो, अगर मैं बोलूं दिस इज माय कार्बोक्सिलेट आयन एंड टू दिस आई गिव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. वी नो हु आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. कौन से NO2, COOH, CHO और सारे ग्रुप्स. या फिर सिमिलरली if I say this is my benzene ring, this is my carboxylate ion, and there is some group which is electron donating. Who are the electron donating groups? OH, NH2. I can have a group like CH3, ethyl, methyl, etc. So I know who are donating, I know who are withdrawing. Now you tell me, if an electron withdrawing group is present on benzoic acid, the benzoate ion, the acidity will be higher or it will be lower? Acidity will be higher. And why? Because it will cause greater delocalization of the negative charge. है? और जितना delocalization ज्यादा उतना stability ज्यादा. जो बात फिनॉक्साइड में बोली डिट्टो हुई. करेक्ट. Similarly, if electron donating group is present, then it will do what? It will intensify the charge. Hence, acidity will be less. और acidity will be less. मतलब नॉर्मली अगर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक्टिविटी इंक्रीजेस, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी के हिसाब से एक्टिविटी डिक्रीजेस. मेरी बात सबको समझ में आई? पढ़ा ना? इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर एक्टिवेटर्स. कब? जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. और अभी जब हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर दोज व्हिच विल इंक्रीज एसिडिटी. मेरी बात सबको क्लियर? यहाँ तक कि हमने नया कुछ नहीं पढ़ा. जो भी अब तक हम बोलते हुए आए थे, जब हम फिनॉल्स पढ़ रहे थे या हम बेंजीन पढ़ रहे थे, वही बात. लेकिन अब यहाँ पर जो बात, इसके बाद जो मैं बोल रही, वो यूनिक कॉन्सेप्ट है. वेरी वेरी यूनिक. इवन अ कॉन्सेप्ट which can be asked in a GPAT examination. बिल्कुल हटके, something very unique. ठीक है? वो बोलता है कि जितना भी अभी मैंने बोला, that is not sufficient to explain the acidity. हम अभी तक फिनॉल के लिए इसके बाद कोई और बात नहीं थी. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिटी, और बस बात यहाँ पे खत्म हो गई. लेकिन जब बात एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की आ रही, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनकी पोजीशन बताएगी कि ये सच में एसिडिटी बढ़ाएंगे या एसिडिटी कम करेंगे. अभी तक हमने कैसा बताया? ऐसी जनरल किधर भी लगाओ. तब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रही हो तो एसिडिटी इंक्रीजेस, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रही हो तो एसिडिटी डिक्रीजेस. क्यों? विड्रॉइंग ग्रुप इज कॉजिंग dispersal of charge और and donating group is causing intensification. यहाँ तक समझ में है?
सब्स्टिट्यूशन के लिए जो बात सही वो एसिडिटी के लिए उल्टी। मतलब विड्रॉइंग ग्रुप्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे आर डीएक्टिवेटर्स, और वही विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी के हिसाब से दे आर एक्टिवेटर्स। यहां तक सबको क्लियर? अब थोड़ा ट्विस्ट कैसा दे? ट्विस्ट बोलता ये कि अगर हमने, मैं ना तुमको बोलूंगी यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं एक्सप्लेनेशन से ज्यादा तुमको बोलूंगी कि फैक्ट पकड़ दिस इज इट, ऐसा, ठीक है? अब ऑफ कोर्स आई विल ट्राई एंड गिव यू द रीजन व्हाई, लेकिन फैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है? थोड़ी देर पहले हमने बोला कि ये बेंजीन रिंग, ठीक है, हमने बोला अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काय पे, कार्बोक्सिलेट आयन पे, तो एसिडिटी लेस, मोर, करेक्ट एवरीबॉडी? और थोड़ी देर बाद हमने बोला कि अगर मैंने ये बेंजीन रिंग के ऊपर ये कार्बोक्सिलेट आयन और अगर इस पर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का एरो इधर जाएगी, ओके, डोनेटिंग ग्रुप, तब एसिडिटी डिक्रीजेस, ये भी बोल दिया। अब मैं एक नई फंडामेंटल दी जो मैंने इससे पहले कभी नहीं दी। ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, ठीक है, ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, चाहे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, कभी ऐसा नहीं किया हमने आज तक। हमने हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर्स को एक्टिवेटर्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल्स को डीएक्टिवेटर्स। सिर्फ एक हैलोजन था जिसको हमने अलग से समझा कि वहां पे दो इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर फिर से कुछ वैसे ही दो इफेक्ट की बात चल रही है। सिचुएशन बोलती है कि कंपाउंड में अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन है और ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इस पर कार्बोक्सिलेट है, लेकिन वो ऑर्थो पोजीशन पे हो। दिख रहा है ऑर्थो पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन पे हो तो ऑलवेज डजंट मैटर कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एसिडिटी विल इंक्रीज। समझ में आई बात? बहुत अजीब लगता ना सुनने को, मेरे को भी लग रहा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है कि विड्रॉअर है, लेकिन अगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो इन ऑल द केसेस एक्टिविटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ओनली। मतलब तुमको याद है ये OH को रिमेम्बर दिस OH, जब ये OH R पर लगता तो इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यही OH जब बेंजीन पर लगता तो इट इज इलेक्ट्रॉन हाँ, देखो यही अल्कोहल, ये सो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस दैट तुम ऐसे आप खड़े हो गए कि अब ये उल्टी बात क्यों बोल रहे हैं कि चाहे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, चाहे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अगर वो ऑर्थो पर है, अगर एक होता ना आपकी गद्दी का असर, समझ रहे तुम? अगर आप कोई भी थे, आप ऐसे थे ढीले बिल्ली, या आप थे बहादुर, लेकिन आपको तख्ता मिल गया, आपको कुर्सी का असर बोलते ना, ये ऑर्थो पोजीशन का असर है उसके ऊपर, राइट? इफ इट इज प्रेजेंट इन ऑर्थो प्लेस देन चाहे ग्रुप कोई भी हो, तो नहीं यार वो उसकी बात नहीं है, वो कुर्सी का दबाव है जो हमको पड़ रहा है, पड़ता ना, दैट इज व्हाट व्हेन द पोजीशन इज प्रेजेंट एट ऑर्थो। अगर मैं अल्कोहल के एग्जांपल समझाऊं तो ये अल्कोहल OH बेंजीन के सामने वाज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, और R के सामने वाज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब यहाँ पर भी ऐसी चीजें हो सकती कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, अगर ऑर्थो पे है तो बिहेवियर सेम टू सेम, दैट इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल कॉज इंक्रीज इन एसिडिटी। मेरी बात सबको क्लियर? ये बात यूनिक है एरोमेटिक अमाइंस के बारे में, ये बात यूनिक। अब तक जो इसके पहले पढ़ा वो तो कॉमन था, लेकिन ये बात हट के यूनिक
for aromatic amines that at ortho position the behavior changes. फिर group electron withdrawing हो या electron donating हो. And now if I come to the meta position, ठीक है? Suppose I could talk about this benzene and this is my carboxylate ion. This is hydroxyl at para position, ठीक है? And I am talking about the same carboxylate ion and I am talking about hydroxyl at the meta position. I should not put any charge on this hydroxyl group. Correct? Right? Now one must remember that the one must always remember that the para position is always having lesser acidity as compared to the meta position. मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक विल बी ऑर्थो, then it will be meta and then it will be the para position. Because para position में सबसे ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रहा है, whereas ऑर्थो में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेशन, उल्टा इफेक्ट. जैसे तुमने हाइड्रोजन में किया था, एक इफेक्ट वाज इंडक्टिव, दूसरा इफेक्ट वाज रेजोनेंस. सिमिलरली यहाँ पर जगह बदलने से ऑर्थो से कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव. ऑर्थो के टाइम पे द ग्रुप इज बिकमिंग द पोजीशन इज बिकमिंग द बॉस, whereas पैरा के टाइम पे इट इज रेजोनेंस व्हिच इज प्लेइंग अ रोल एंड एक्टिव एसिडिटी डिक्रीजेस. तो अगर मैं जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू में इस पॉइंट को कंसाइज करूं तो मैं बोलूंगी दैट पैरा सब्स्टिट्यूटेड is less acidic than meta, is less acidic than ortho. Final. फिर ग्रुप कोई भी हो, राइट? अगर मैं पूछूं तुमसे कि benzoic acid is a stronger acid or nitrobenzoic acid is a stronger acid? अगर मैं तुमसे ऐसे कंपैरिजन करूं, benzoic acid is a stronger acid or nitrobenzoic acid is a stronger acid? Nitrobenzoic. Or if I ask para-nitrobenzoic acid is a stronger acid or ortho-nitrobenzoic acid? Always ortho is the strongest. मेरी बात clear सबको? Everybody? That is all about the acidity of carboxylic acid and that is again all about the effect of substituents on carboxylic acid. ये हो गई हमारी दो बातें. अब आए हम reactions of carboxylic acid. Easy and simple. Reactions of carboxylic acid. छोड़ो aromatic को, R को पकड़ो. R याद है तुमको? सबको? ठीक है? सबको R याद है? R कार्बोक्सिलिक एसिड, R C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है? अगर मैं इसको रिएक्ट करूं फॉर एग्जांपल NaOH से क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. R COOONA मिल गया बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड. इट विल डोनेट इट्स प्रोटॉन एंड इट विल फॉर्म अ सॉल्ट. कौन सी नई बात है? ठीक है? इफ आई रिएक्ट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड with alcohol, then what will be formed? Ester will be formed. What will I get? R C double bond O R dash. मान लो ये R dash. If I react this carboxylic acid with NH3, बताइए क्या बनेगा? Amide R C double bond O NH2. बराबर? Everybody? Yes. If I react this carboxylic acid with halogen, then acid halide R C double bond O Cl. Correct? If I react this carboxylic acid with R C double bond O OH, then acid halide R C double bond O C double bond O R dash. Correct everybody? Yes. मतलब मैंने क्या क्या बना लिए? एसिड के सारे डेरिवेटिव्स. अगर मेरे को पूछे रिएक्शन ऑफ
समझ में आया? आई एम सिंपली मेकिंग इट बेंजीन रिंग, खत्म। आर की जगह ए आर। एरोमेटिक डब्बा लिखना है, डब्बा लिखो, हो गया रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और ले लो, ये समझ में आया? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? कुछ नया नहीं, नथिंग न्यू, नथिंग। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो तुम सबको रटी हुई है, वो तुम ही बताओ। RC डबल बॉन्ड OH on dash will give you what? This. Who is this compound? What is the reaction I am talking about? Reduction. Which again on reduction will give you what? हो गया reactions of aromatic carboxylic acid। जो एसिड के लिखे थे सब लिख डालो, जितने याद है सब। ये सबसे इजी वाले हैं। एसिड विच फॉर्म्स ऑफ एसिड कन्वर्ट्स इनटू ईस्टर, अमाइड, अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, और आखिरी कौन सा? ये। और एक और बहुत जरूरी। व्हाट डू यू से दैट दिस इज माय carboxylic acid, right? If I do this reaction on it, then HNO3 plus H2SO4, बताइए क्या मिलेगा? Nitration, and it will occur at what position? Carboxylic acid is a activator or deactivator? And it is a correct? तो लगा दो डब्बा COOH NO2, हो गई बात खत्म। On the meta position, आया समझ में? ऐसे ही लिख देंगे 5 रिएक्शन। कौन से? हाइड्रोजनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन। ओके, रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। डू यू गेट मी? राइट? सिर्फ एक नई चीज पढ़ी क्या, वो सब्स्टिट्यूएंट वाली बात, जो थोड़ी सी अलग। बाकी तो सब बातें ऑलरेडी फिनॉल में पढ़ी थी, सेम टू सेम रिपीट करें। एंड दैट इज ऑल अबाउट aromatic carbon. You want me to write these reactions? No. You will write it? Yes. Okay. Meta position. So that is all